Hey guys, welcome back to my YouTube channel Future Banker Ayushi. So today we're gonna study the part 7 of static banking awareness. Okay, so in part 6 we study about the financial instruments, and in financial instruments we study about the money market. Okay, so they are main instruments of money market in India and we just studied it. Okay, so today in this video we're gonna study these points and these instruments briefly. Okay, so without wasting any more time, let's come to the video. Okay, so I'm gonna start the money market from the beginning. Okay, so financial markets in India, first one is money market. Okay, so money market has become a component of the financial market from buying and selling of securities of short term maturities of 1 year or less. Okay, so money market में जो components हैं, जो मनी मार्केट है सॉरी, वो फाइनेंशियल मार्केट का ही कंपोनेंट बन चुका है, जहाँ की बाइंग और सेलिंग होती है सिक्योरिटीज़ की शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड के लिए, 1 साल है उससे कम के लिए. ओके, so some instruments of money market are, so these are treasury bills. Okay, first one is treasury bills, second one is commercial paper, third one is call money, fourth one is certificate of deposit, fifth one is commercial bills, sixth one is repo market, seventh one is collateralized borrowing, and the end lending obligation, CBLO. Okay, so we're gonna study about treasury bills first. Okay, so what is treasury bills? Okay, it is also known as zero coupon bonds. Okay, are the instruments of short term borrowing less than 1 year. Okay, so ट्रेजरी बिल्स को हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होता है, 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए. ओके, yeah, so let's come to the another point. Okay, so next one is commercial paper. So it is a short term unsecured promissory note with maturity period of 7 days to 1 year. ओके, तो जो कमर्शियल पेपर है वो एक शॉर्ट टर्म नोट्स, मतलब पेपर के फॉर्म में होता है ये. ओके, पेपर्स के फॉर्म में होता है, एक नोट जैसा होता है जो इसकी मेच्योरिटी पीरियड है वो 7 डेज से लेके 1 ईयर इसके बीच में होती है. ओके, तो हम 7 डेज के लिए ले सकते हैं और 1 ईयर के लिए भी ले सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ दी time period of commercial paper. Okay, so we're going to study about the another point. Okay, so the next one is call money. Okay, so overnight 1 day loans can be availed by banks to meet liquidity in call money market. नोटिस मार्केट 2 days to 14 days. ओके, सो जो कॉल मनी है वो हम ओवरनाइट ले सकते हैं. ओके, कॉल मनी का मीनिंग होता है कि ओवरनाइट लोन लेना, जो बैंक्स ले सकते हैं अपनी लिक्विडिटी को इमरजेंसी में पूरी करने के लिए. ओके, सो हम कॉल मनी मार्केट कहते हैं, और इसका जो नोटिस मार्केट है इसका 2 days से लेके 14 days तक है. ओके, सो हम इसको ओवरनाइट है 1 दिन के लिए, 1 दिन के अंदर हम इसको ले सकते हैं. Now we're gonna study about commercial bill. Okay, so it is a bill of exchange used to finance the working capital of firms. Okay, ये bill of exchange होता है. Commercial bills, ये it is a bill of exchange to finance working capital of firms. जो भी हम बेचते हैं लेते हैं, तो एक bill of exchange जो होता है उसको हम commercial bill कहते हैं. Okay, now next one is repo market. Okay, so it is an instrument for borrowing funds by selling with an argument to repurchase the said securities on a mutually agreed price. So repo market जो है उसमें ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बोरो फंड्स को बोरो करने के लिए बाय सेलिंग विद एन एग्रीमेंट, जो कि एक एग्रीमेंट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फंड्स जो हैं बोरो किए जाते हैं और उसके बाद उनको रीपर्चेज भी किया जाता है. ओके, सो वो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस, मतलब वो डिसाइडेड रहता है कि वो इसी प्राइस पे उसको खरीदेंगे और बेचेंगे. ओके, जो सिक्योरिटीज़ है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिपो मार्केट. सो नाउ वी गोना स्टडी दी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो व्हाट इज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स? इट इज़ अ paper or electronic obligation that enables the issuing party to raise funds by promising to repay a lender in accordance with the terms of a contract. For example, notes, bonds, debentures, certificate, mortgages. Okay, so debt instruments, debt मतलब उधार देना. Okay, सो ये एक पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक ऑब्लिगेशन होता है जो ये इनेबल करता है कि हमें इशू करता है कि हम पार्टी जो है वो फंड्स रेज कर सकती है, जो दूसरी पार्टी है लेंडर को प्रॉमिस करेगी कि वो उसको रीपे कर देगी कॉन्ट्रैक्ट के तहत. ओके, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स होते हैं उसके तहत. ओके, जैसे कि नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सर्टिफिकेट, मॉर्गेजेस एक्सेट्रा. ओके, सो नाउ वी गोना स्टडी अबाउट इक्विटी शेयर्स. सो व्हाट आर इक्विटी शेयर्स? द ओनर ऑफ दीज शेयर्स undertakes the maximum entrepreneurial risk associated with a business venture. ठीक है, सो द फॉर्मूला इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी. सो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ओके, सो जो ओनर होता है शेयर का वो क्या करता है, जो मैक्सिमम जो रिस्क होता है, ठीक है,
मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर रिस्क होता है वो बिजनेस वेंचर के साथ अंडरटेक करता है। ओके, सो मैक्सिमम जो एंटरप्रेन्योर है वो उसके पास होता है जो उसका ओनर होता है। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल इक्विटी। ओके, सो व्हाट आर असेट्स। ओके, हम अभी असेट्स की बात करते हैं। तो असेट्स जो होता है जो कि बैंक हमको लोन देता है। ओके, सो वो बैंक के जो हैं वो असेट्स हैं। ओके, क्योंकि वो बैंक को वापस लेने रहते हैं तो वो बैंक के असेट्स हैं। ओके, और लायबिलिटीज़ वो होते हैं जो हम बैंक को मनी देते हैं, जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो हम उसे हमें वापस देना रहता है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। ओके, सो असेट्स में अगर हम लायबिलिटीज़ आई हैं तो वो इक्विटी कहलाता है। ओके, जैसे कि बैंक ने हमें पैसे दिए और उसको हमको जो पैसे देना है उनका जो डिफरेंस है वो इक्विटी कहलाता है। Next one is preference shares. Preference shares. Okay, so preference shares, more commonly referred to as preferred stock, are shares of a company's stock with dividends that are paid out to shareholders at a fixed rate, like that of interest on bonds. So preference shares वो होते हैं कि जो एज भी उसके नेम से ही पता चल रहा है जो प्रेफरेंस पे रखा जाता है। ओके, so preference shares more commonly referred to preferred stock. ओके, जो भी जैसे शेयर्स हैं कंपनी के जो बटे उसमें जो प्रेफरेंस शेयर्स जो उसको जो ओनर है ऐसा कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ जैसे पार्टी है जो भी उसके पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो भी उसके पार्टनर्स है कंपनी के, तो उसमें जो कुछ कुछ लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है तो उनको हम प्रेफरेंस शेयर्स देते हैं, है ना। सो प्रेफरेंस शेयर्स मोर कॉमनली रेफर टू एज अ प्रेफरेंस स्टॉक आर शेयर्स ऑफ अ कंपनी स्टॉक विद डिविडेंड्स दैट आर पेड टू फिक्स रेट। उनको फिक्स रेट पे, मतलब उनका फिक्स रहता है कि उनको प्रेफरेंस पे हम इतना पैसा देंगे। ओके, लाइक डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। ओके, जो बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट है वो हम उनका फिक्स रहता है कि उनको इतना देंगे, उनको प्रेफरेंस पे रखा जाता है, पहले उनको देंगे। ओके, उनका इतना डिसाइडेड है। ओके, so now next one we are studying about negotiable instruments. So negotiable instruments, so it is come under section 30 Negotiable Instrument Act 1881. Okay, for example a promissory note, bill of exchange और check. Okay, so negotiable instruments कहलाते हैं promissory note जो हमने पढ़ा, bill of exchange हमने पढ़ा और check तो आपको पता ही है। Okay, so ये कब आया था, ये आता है अंडर सेक्शन 13 के अंडर negotiable instrument act 1881. Okay, okay. So guys, this is all for the today's video. I'm gonna cover more points in the another video. Okay, and I hope you like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. And thank you. Okay, so thank you guys, and wait for my next video. Bye.